والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب والا جاہی کے انتقال پر مولانا سید اندر شاہ قاسمی نے کیا رنج و غم کا اظہار۔ اودھ یونیورسٹی میں بنے گا بیگم اختر کا میوزیم۔ ارون جیٹلی نے کہا منسوخ نہیں ہوگا رافیل طیارہ سودا، کانگریس صدر راہل گاندھی پر بھی سادہ نشانہ۔ جموں کشمیر میں مقررہ وقت پر ہی ہوں گے پنچایت انتخابات، راجناتھ سنگھ کا بیان۔ حق کے لیے سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے سر جھک بھی نہیں سکتا، یہی کربلا کا پیغام ہے، مولانا سید اندر شاہ قاسمی کا بیان۔ رافیل سودے پر بی جے پی لیڈر شتروگھن سنہا نے کہا وزیر اعظم سے ملک جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے۔ آرمی چیف بولے پاکستان کو اسی کی زبان میں جواب دینے اور درد محسوس کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ راہل گاندھی کے پاس خود کا علم نہیں، لکھا ہوا بولتے ہیں، یوگی کا بیان۔ بلدیاتی و پنچایت انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ مجبوراً کرنا پڑا، عمر عبداللہ کا بیان۔ رویش کا بلاگ اب رافیل معاملے میں مودی براہ راست کٹہرے میں۔ جموں کشمیر ایس پی اوز کے قتل کی آئی نے دی تھی ہدایت، ثبوت ملنے کے بعد ہندوستان نے منسوخ کی میٹنگ۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ تیونس شدید بارشیں اور سیلاب۔ روس امریکہ ادلب کو شام کے دیگر علاقوں کے حالات چھپانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مذہبی تہوار مسجد اقصی کا تقدس پامال کرنے کی صہیونی ترغیبات۔ دنیا جان لے فلسطین بکاؤ مال نہیں ہے، عیسائی رہنما کا بیان۔ یمنی فوج نے سعدہ میں حوثی ملیشیا کی بچھائی 500 بارودی سرنگیں تلف کر دی گئیں۔ ہم کسی کو بھی اپنے وطن کی سیادت پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے، بن سلمان کا بیان۔ 4 اکتوبر سے ہربین ٹرین کے آغاز کا اعلان۔ ایران اہواز حملے کے بعد یورپی ممالک کے سفیروں کی طلبی۔ عالمی نگرانی میں اسرائیل سے بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں، محمود عباس کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلورو سے ہے۔ جنوب ہند کے مشہور و معروف اور بزرگ عالم دین مولانا پی ایم محمد زکریا صاحب والا جاہی کے ثانیہ ارتحال پر مولانا سید اندر شاہ قاسمی مدظ اللہ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملت اسلامیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان بتایا ہے۔ مولانا نے کہا کہ مولانا مرحوم نے 55 سال تک بخوبی دینی و دعوتی سفر طے کرتے ہوئے بڑی نمایاں خدمات انجام دی۔ مولانا نے کہا کہ موت انسان کے بس میں نہیں ہے، ہماری مرضی سے موت کبھی نہیں آتی۔ حضرت کا یوم عاشورہ، یوم جمعہ اور روزے کی حالت میں انتقال کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے خدمات کو شرف قبولیت بخشی ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہم اس دکھ درد کی گھڑی میں حضرت والا کے اہل خانہ اور پسماندگان خصوصاً حضرت کے خلف الرشید مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی کے ساتھ ہیں، اللہ تمام کو صبر جمیل عطا کرے۔ مولانا نے مسلمانوں سے ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت کا اہتمام کرنے کی اپیل کی۔ قابل ذکر ہے کہ مولانا کی انتقال کی خبر سنتے ہی مولانا نے بیان جمعہ کے دوران اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دعائیں مغفرت کی اور بعد نماز مغرب بذات خود حضرت کی زیارت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، جہاں حضرت کے خلف الرشید مولانا پی ایم مزمل صاحب سے مولانا نے ملاقات کرتے ہوئے تعزیت پیش کی اور تسلی دلائی۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ اتر پردیش کے فیض آباد میں ملکہ غزل بیگم اختر کی یاد میں ان کے نام پر ایک میوزیم اور اکیڈمی قائم کی جائے گی۔ 5 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا میوزیم اور اکیڈمی ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اودھ یونیورسٹی کے تحت نصب ہوگی اور اس میں 8 آڈیٹوریم ہوں گے۔ یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کونسل کے اوم پرکاش سنگھ نے UNI کو بتایا ہے کہ یونیورسٹی نے اس کے لیے 10,000 مربع فٹ زمین دی ہے اور وہ شروع میں رقم بھی دے گی۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ رافیل طیارہ سودے کو لے کر فرانس کے سابق صدر فرانسو اولاندو کے دعوے کے بعد مودی حکومت اپوزیشن کے نشانے پر آ گئی ہے، جس کے بعد مرکزی حکومت کے سبھی وزراء اپنی حکومت کے دفاع میں اتر آئے ہیں۔ مرکزی وزیر ارون جیٹلی نے رافیل سودے کو لے کر کانگریس صدر راہل گاندھی کے الزامات پر جوابی حملہ کیا ہے۔ جیٹلی نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی کے کچھ بھی کہنے سے اور الزام لگانے سے رافیل سودا منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ رافیل ڈیل پر ہنگامہ آرائی کے دوران ارون جیٹلی نے راہل گاندھی کی لوک سبھا میں وزیر اعظم سے گلے ملنے اور بعد میں آنکھ مارنے والے واقعے کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے تنزیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ڈسکورس لافٹر چیلنج نہیں ہے، آپ کسی کو گلے لگا لو، آنکھ مار لو، پھر غلط بیان دیتے رہو۔
जमहूरियत में हमले होते हैं लेकिन अल्फाज ऐसे हों जिसमें दानिशमंदी नजर आए। वजीर खजाना ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर ये सब पहले से ही मनसूबाबंद निकलेगा, क्योंकि 30 अगस्त को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि पेरिस में कुछ धमाके होने वाले हैं और इसके बाद वही हुआ जैसा कि उन्होंने कहा था। जेटली ने कहा कि राहुल गांधी को कैसे मालूम हुआ कि फ्रांस से ऐसा बयान आने वाला है। ये जुगलबंदी है, इस पर मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जहन में सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबर नई दिल्ली से, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हफ्ते को कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबात सभी पार्टियों को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करने का मौका देंगे। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता हफ्ते जानकारी दी थी कि रियासत में पंचायत इंतखाबात 17 नवंबर से 9 मराहिल में होंगे। उन्होंने बताया था कि इन इंतखाबात के लिए पहली मरतबा EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक वोटों की गिनती उसी दिन या फिर अगले दिन कराई जाएगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की 2 अहम पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने पंचायत इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर रखा है और दोनों पार्टियां इंतखाबात में शरीक नहीं हो रही हैं। अब खबर बेंगलुरु से, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की थी कि मेरा ये बेटा शहीद कर दिया जाएगा। जब कूफियों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बेशुमार खतूत लिखे और कहा कि वो यजीद की सल्तनत के खिलाफ आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा के लिए रवाना हो गए। लेकिन कूफियों ने धोखा दिया और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहले खाना और रफ़क़ा को एक साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। आज मुसलमानों को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत तो याद है, लेकिन उसका मकसद और पैगाम याद नहीं। इन ख्यालात का इजहार नूरानी मस्जिद इलियास नगर बेंगलुरु में नमाज जुमा से कबल हज़ारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि अगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो इब्न ज़ियाद की बात मानते हुए उसके हाथ पर बैत करके अपनी और अहले खाना और रफ़क़ा की जान बचा सकते थे, लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाते हुए पैगाम दिया कि हक़ के लिए सर कट तो सकता है लेकिन बातिल के सामने सर झुक नहीं सकता। उन्होंने ये पैगाम दिया कि बातिल से कभी समझौता नहीं हो सकता। मौलाना ने कहा कि हमें आज खुद ये फैसला करना है कि हम हुसैन हैं या यजीदी हैं, हम हक़ के साथ हैं या फिर बातिल के साथ। एक और खबर राफेल सौदे के सिलसिले में है। राफेल सौदे पर फ्रांसीसी मीडिया के हवाले से साबिक सदर फ्रांसो ओलांदो के बयान पर अपोजिशन लीडरों के साथ बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर शत्रुघ्न सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सौदे पर अपना रुख वाज़े करने की दरख्वास्त की है। मिस्टर सिन्हा ने ट्वीट करके कहा कि मुतनाज़ राफेल सौदे के पस मंज़र की हकीकत बताने के लिए वजीर आजम के पास ये सबसे मुनासिब वक्त है। अब हमें क्या कहना है सर जी, इस मामले पर सच बताने का सही और मुनासिब वक्त है। सौदे के ज़ाब्ते और शराइत आम होनी चाहिए। क्या सौदे के दौरान 3 बार कीमतों में इजाफा किया गया है? बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने एक दीगर ट्वीट में कहा कि वजीर आजम जी सच बोलिए, मुल्क सच जानना चाहता है, पूरा सच ये पब्लिक है, सब जानती है। एक और खबर इंडिया पाकिस्तान के सिलसिले में है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाक फौज की BSF जवान के साथ की गई बर्बरियत पर हफ्ते के रोज सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब देने का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों और पाकिस्तानी सेना से बर्बरियत का बदला लेने के लिए हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी। हाँ, अब वक्त आ गया है कि बगैर बर्बरियत का सहारा लिए हमें पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब देना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें भी ऐसा ही दर्द महसूस कराना चाहिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत के सवालों पर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जनरल रावत ने यह भी कहा, मुझे लगता है कि हमारी सरकार की पॉलिसियां काफ़ी वाज़ेह रही हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को लड़ने की ज़रूरत है। जनरल रावत ने आज यहाँ फौज की 61 किलोरी में मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज की सरहदी सिक्योरिटी फोर्स के जवान के साथ की गई बर्बरी के बाद हमने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन हमने किसी बर्बरियत का मुजाहिरा नहीं किया। अब खबर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शनिचर को यहां कहा कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी के पास मुल्क और आवाम के बारे में खुद का कोई इल्म नहीं है और वो तो वही बोलते हैं जो उन्हें लिखकर दिया जाता है। मिस्टर योगी ने गोरखनाथ मंदिर में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सदर पर तरस आता है कि उन्हें जो कुछ भी लिखकर दे दिया जाता है वो सिर्फ वही बातें बोलते हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत पर राहुल गांधी के जरिए किए गए ट्वीट पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में 70 सालों तक हुक्मरानी की है,
लेकिन बीजेपी ने इख्तिदार संभालते ही 8 करोड़ लोगों के लिए बैतुल खला, 4 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन, बेघर अफराद को घर और नौजवानों के लिए स्टैंड अप स्टार्टअप और मधुरा लोन और कौशल विकास योजना के तहत रोजगार के मौके मैसर कराए हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला मजबूरन करना पड़ा है। बकौल उमर अब्दुल्ला, मरकज को अपनी बात सुनाने का और कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने दौरे लद्दाख के दौरान नोबरा में, पनामिक और सोमर में पार्टी होद्देदारों के अलग अलग इजलासों से खिताब करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि दफा 35A के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमने पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है क्योंकि हमारे पास अब मरकज को अपनी बात सुनाने का और कोई तरीका बाकी नहीं रह गया। हमने मरकज को समझाने का हर एक तरीका इख्तियार किया, लेकिन नई दिल्ली ने सब कुछ अनदेखा और अनसुना कर दिया। इंतखाबात से दूर रहने का फैसला हमारे लिए आसान नहीं था, हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ा है क्योंकि हम रियासत को दरपेश खतरात को बखूबी पहचानते हैं और इन खतरों में दफा 35A के बारे में हमने कई लोगों में जानकारी मुहिम चलाई, आपको भी समझाया और हम उम्मीद करते हैं आप भी ये मुहिम आगे लेके जाएंगे और इस खतरे से रियासत को बचाने में अपना रोल निभाएंगे। अब ये खबर रविश के ब्लॉग से है। ईफिल टावर के नीचे बहती सीन नदी की हवा बनारस वाले गंगापुत्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पेरिस की शाम का हिसाब मांगने आ गई हैं। 10 अप्रैल 2015 का पेरिस सफर सिरे से मुश्तबा हो गया है। गंगा के सामने सीन बहुत छोटी नदी है, लेकिन वह गंगा से बेहतर बहती है। इसके किनारे खड़ा ईफिल टावर बनारस के पुल की तरह यूं ही हवा के झोंके से गिर नहीं जाता है। वजीर आजम कब तक गंगापुत्र भीष्म की तरह खामोश रहेंगे? क्या अंबानी के लिए खुद को इस महाभारत में भीष्म बना देंगे? न कहा जा रहा है, न बचा जा रहा है। फ्रांस के साबिक सदर फ्रांसो ओलांदो के बयान के बाद कि अंबानी का नाम हुकूमत हिंद की तरफ से आया था, राफेल तनाज़े में शक की सुई फैसलाकुन तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ मुड़ गई है। 10 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी और ओलांदो के दरमियान ही राफेल करार हुआ था। ओलांदो ने फ्रांस के मशहूर अखबार मीडिया पार्ट से कहा है कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था, अंबानी का नाम हुकूमत हिंद की तरफ से आया था। अब तो बताना पड़ेगा कि अंबानी का नाम हुकूमत हिंद में किसकी तरफ से आया था, ज़बानी आया था या दस्तावेजों में ये नाम जोड़ा गया था, और इस नाम के लिए किसने जोर डाला था कि फ्रांस के सदर के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मोदी जी, आपकी तरफ से कौन था तो अंबानी कंपनी के अलावा सारे रास्तों को गायब कर रहा था और क्यों कर रहा था? वज़ीर आज़म मोदी के सफर के दौरान NDTV के पेरिस वाक़े सहाफ़ी ने हुकूमत हिंद से उन सनअतकारों की फहरिस्त मांगी थी जो एक इवेंट में बोलने वाले थे। हुकूमत की तरफ से लिस्ट देने में आनाकानी की गई और जब मिली तो इस लिस्ट से गौतम अडानी का नाम गायब था। अनिल अंबानी का नाम निचली लाइन में था। नवपुर तिवारी को फ्रांस हुकूमत से जो लिस्ट मिली उसमें अनिल अंबानी और गौतम अडानी का नाम सबसे ऊपर की लाइन में था। है हिंदी के फाटकों, क्या आपको इसी से शक नहीं होता कि फ्रांस हुकूमत की लिस्ट में गौतम अडानी और अनिल अंबानी के नाम सबसे ऊपर है? हुकूमत हिंद की लिस्ट में अनिल अंबानी का नाम नीचे है ताकि किसी को उनकी मौजूदगी की बरतरी पर शक न हो। गौतम अडानी का नाम क्यों गायब था? अब आते हैं फ्रांस हुकूमत के बयान पर। ओलंद के बयान के बाद तर्जुमानों की हुकूमत को काट मार गया है। सारे बहादुर तर्जुमान खामोश हो गए। वजारत दिफा से ट्वीट आता है कि हम इन खबरों की जांच कर रहे हैं। फ्रांस की हुकूमत के जवाब पर हिंदी में गौर करें क्योंकि ये सारी बातें आपकी हिंदी के अखबार और चैनल गायब कर देंगे। यह आपकी बदकिस्मती है कि आपको राफेल का घोटाला ही नहीं समझना है, मीडिया का घोटाला भी बोनस में समझना है। फ्रांस हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है कि फ्रेंच कंपनी के साथ कौन सी हिंदुस्तानी कंपनी साझेदार होगी। उन हवाई जहाज़ों के खरीदने की हिंदुस्तान की जो काटिद तय अमल है उसके तहत फ्रांस की कंपनियों को अपना हिंदुस्तानी साझेदार चुनने की पूरी आज़ादी है कि वो किसको ज़्यादा ज़रूरी समझती है। इसके बाद वो उसको हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने मंजूरी के लिए रखती है कि फ्रांस की कंपनी इस हिंदुस्तानी कंपनी के साथ काम करना चाहती है। फ्रांस हुकूमत ने ओलांद के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया, तरदीद तक भी नहीं की है। और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 3 स्पेशल पुलिस अफसरों SPO को अगवा करके उनके कत्ल के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मैसेज को इंटरप्रेट करके ऐसा दावा किया है। मैसेज में ISI एहलकार कश्मीर में छुपे जंगजुओं को पुलिस एहलकारों को इस्तीफा के लिए डराने धमकाने और न मानने पर उन्हें अगवा करके कत्ल करने की हिदायत देते हुए सुना गया है। ख्याल रहे कि जुमा की सुबह हिजबुल मुजाहिदीन के जंगजुओं ने शोपियां इलाके से 3 स्पेशल पुलिस अफसरान निसार अहमद,
फिरदौस अहमद और कलवंत सिंह समेत एक शहरी को अगवा कर लिया था। इनमें से पुलिस एहलकारों का कत्ल कर दिया गया, जबकि एक एसपीओ के भाई फयाज अहमद भट्ट को जंगजुओं ने वार्निंग देकर छोड़ दिया है। फौज ने शहीद तीनों पुलिस एहलकारों की लाशें जंगल से बरामद की थी। इस बुज़दिलाना हरकत की वजह से हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के दरमियान न्यूयॉर्क में मुजव्वज़ा मुलाकात को मनसूख कर दिया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद से मिली आखिरी हिदायत की बुनियाद पर ही पुलिस एहलकारों का कत्ल किया गया था। पाकिस्तान से भेजे गए मैसेज इतने वाज़ेह थे कि इसमें मारे जाने वाले एसपीओ के नाम का भी जिक्र किया गया था। आईएसआई ने अपने मैसेज में पुलिस एहलकारों का कत्ल करने की हिदायत देने के साथ साथ आम शहरी को छोड़ने की भी हिदायत दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आया यह मैसेज इतनी तेजी से आया कि हिंदुस्तानी एजेंसियों को कोई मौका ही नहीं मिल सका। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि एसपीओ के कत्ल के पीछे का मकसद तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे मकामी इंतखाबात को मुतासिर करना है। हालांकि वज़ारत दाखिला का कहना है कि इस तरह के हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर की हैं। पहली खबर तुर्की से है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज अमेरिका के दौरे पर तशरीफ ले गए हैं। सदर एर्दोगान अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की 73वीं जनरल कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे और उनका यह दौरा 23 से 27 सितंबर तक जारी रहेगा। न्यूयॉर्क में मुतवक्किअ जनरल कमेटी मुज़ाकरात से कबल सदर एर्दोगान 24 सितंबर बरोज़ सोमवार आलमी मुहाजिरीन इत्तेफाक के आला सतही इजलास में शिरकत करेंगे, जहां वो शामी मुहाजिरीन के लिए तुर्की की खिदमत को बयान करेंगे और दुनिया को तुर्की की मदद करने का पैगाम देंगे। न्यूयॉर्क में वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुटेरेस के साथ भी मुलाकात करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान गुटेरेस समेत उन तमाम रहनुमाओं को जिनके साथ वो मुलाकात करेंगे 17 सितंबर को रूस के शहर सूची में तय पाने वाले इदलिब समझौते से आगाह करेंगे। वो न्यूयॉर्क में अमरीकी सरमायाकारों और कारोबारी हलकों के साथ भी मुलाकात करेंगे और तुर्की में सरमायाकारी करने की अपील करेंगे। दौरे में वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू भी सदर एर्दोगान के हमरा होंगे और वो भी अपने रूसी और ईरानी हम मनसबों के साथ मुलाकात करेंगे। सदर एर्दोगान 26 सितंबर को बरोज़ बुध न्यूयॉर्क से जर्मनी के शहर बर्लिन तशरीफ ले जाएंगे। अब खबर त्यूनिस के शिमाली मशरिकी इलाके नाबेल में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। कौमी शहरी दिफा कमेटी के तर्जुमान मास तेरिया ने सरकारी टेलीविजन चैनल के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि नाबेल के इलाके में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब में एक शख्स हलाक हो गया। सैलाब में इलाके के मुतअद्दिद घर ज़ेर आब आ गए हैं और सड़कें गलियां आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक हमसाया सूबों से सिविल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमों को सैलाब ज़दा इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया है। अब खबर रूस से। रूस के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल नुमाइंदे वासिल नेब्जिया ने कहा है कि अमेरिका शाम के दीगर इलाकों के हालात छुपाने के लिए एजेंडे को मसले इदलिब के साथ मसरूफ रखे हुए है। वासिल नेब्जिया ने ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि अमेरिका इदलिब में दरपेश तबाहियों को एजेंडा बनाकर शाम के दीगर इलाकों में अमरीकी फौजी यूनिटों की मौजूदगी को एजेंडे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। नेबंजिया ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर इलाके में दरपेश दीगर वाक़यात को मंजर-ए-आम पर नहीं आने दे रहा। इदलिब शाम के दीगर इलाकों के हालात का एक पर्दा है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को तुर्की और रूस के सुदूर के दरमियान इजलास से एक दिन कबल ऐसा माहौल पैदा किया गया जिससे एक तबाही मचने वाली है। जारी करदा बयानात में कहा गया कि अगर इदलिब पर हमला किया गया तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंसानी तबाही की राह हमवार करेगा। हमारे ख्याल में यहाँ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दीगर वजूहात में भी मौजूद है। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। फ़िलिस्तीन में काबिज़ यहूदी आबादकार आए रोज़ मजहबी मवाक़े और त्यौहारों के आड़ में हरम कुदसी और मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी यहूदी तंजीमों और हैकल सुलेमानी के प्रचारक ग्रुपों ने ईद अर्श नामी त्यौहार के आड़ में इतवार से यहूदियों को क़िबला अव्वल पर धावों की अपील है। मरकज़ी इत्तलाआत फ़िलिस्तीन के मुताबिक तंजीमात हैकल की तरफ से जारी करदा एक बयान में यहूदी आबादकारों से कहा गया है कि वो आइंदा एक हफ्ते के दौरान क़िबला अव्वल में दाखिल होकर इज्तिमाई इबादत और ईद अर्श की इबादत में हिस्सा लें। ये बयान एक इश्तिहार की शक्ल में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर पोस्ट किया गया है। बयान में कहा गया है कि यहूदी आबादकार आज इतवार से आइंदा एक हफ्ते तक हरम कुद्सी में मौजूद रहें और मजहबी रसूमात अदा करें। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। फ़िलिस्तीन के सरकर्दा ईसाई रहनुमा और रोमन ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह अताउल्लाह हिना ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी कौम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने सर नहीं झुकाएगी। उनका कहना था कि फ़िलिस्तीनी कौम ने आज तक अपने उसूली मुतालबात पर कोई समझौता नहीं किया
ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پیش کردہ نام نہاد امن تجویز صدی کی ڈیل ایک منحوس اسکیم ہے جو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی۔ فلسطینی عیسائی پادری عطا اللہ نے کہا کہ مرکزی اطلاعات فلسطین کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے فلسطینی قوم کی یکجہتی اور اتحاد کے سامنے صہیونی امریکی سازش پارا پارا ہوگی اور قضیہ فلسطین کے تصفیے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ نے فلسطینی قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا اور فلسطینیوں کو دباؤ میں لانے اور انہیں بلیک میل کرنے کی مجرمانہ پالیسی اپنائی، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، فلسطینی اتھارٹی کی امداد بند کی، فلسطینی پناہ گزینوں کے مالی حقوق چھینے اور واشنگٹن میں تنظیم آزادی فلسطین کے دفاتر بند کر کے فلسطینی سفارت عملے کو بے دخل کیا۔ قضیہ فلسطین کا تصفیہ عیسائی پادری عطا اللہ ہنا نے کہا کہ امریکہ کا اصل ہدف قضیہ فلسطین کا تصفیہ کرنا ہے۔ بدنام زمانہ صدی کی ڈیل کی سازش بھی قضیہ فلسطین کو ختم کرنا ہے، مگر فلسطینی قوم امریکیوں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ ایک سوال کے جواب میں فلسطینی عیسائی رہنما کا کہنا تھا کہ صدی کی ڈیل ایک گھناؤنی سازش ہے اور یہ سازش کسی صورت میں کامیاب ہونے نہیں دی جائے گی۔ اب خبر یمن سے۔ یمنی فوج کی انجینئرنگ ٹیموں نے عرب اتحاد کی مدد سے شمالی صوبے سعدہ کے ضلع قطاف میں حوثی ملیشیا کی بچھائی گئی 500 بارودی سرنگیں اور دھماکہ خیز ڈیوائزر نکال کر تلف کر دی ہیں۔ سعدہ میں بارودی سرنگوں کی تلفی کا کام کرنے والی انجینئرنگ ٹیموں کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ انہوں نے سعدہ میں حوثی ملیشیا سے آزاد کرائے گئے علاقوں کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں تاکہ شہری جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس ذریعے کا کہنا تھا کہ حوثیوں نے آبادی والے علاقوں میں سینکڑوں بارودی سرنگیں چھپا رکھی ہیں۔ اب تک ان سے بازیاب کرائے گئے علاقوں سے 200 بارودی سرنگیں، بارود سے بھری گاڑیاں اور 300 دھماکہ خیز ڈیوائزر نکالی جا چکی ہیں۔ ان کا وزن 3 سے 80 کلو گرام تک تھا۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ مملکت کا 88ویں یوم تاسیس ایک موقع ہے کہ ہم اس بات کو یاد کریں کہ ہمارے وطن کے بانی اور اس کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنے والے شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود اور ان کے بعد آنے والے ان کے بیٹوں نے کیا کچھ انجام دیا۔ سعودی ولیعہد نے یہ بات مملکت کے قومی دن کے موقع پر اپنے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے وطن نے بین الاقوامی، اسلامی اور عرب دنیا کی سطح پر اپنا مقام بنایا۔ وہ علاقائی اور بین الاقوامی امن میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے ریاستی اداروں کے عمل کے ذریعے اقتصادی ترقی کے میدان میں کامیابیاں حاصل کی۔ اس دھرتی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی کوششوں سے سماج امن کا حصول ممکن بنایا۔ بدعنوانی کی انسداد کے لیے حکومت نے شفافیت اور انصاف پر مبنی بنیادی اصولوں اور اقدامات کا سہارا لیا۔ اس وقت مملکت ویژن 2030 کے اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک اور خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ ڈاکٹر نبیل العامودی نے کہا ہے کہ حرمین ٹرین سروس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز 4 اکتوبر 2018 کو کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرین مملکت کے 5 اہم اسٹیشنوں مکہ معظمہ، جدہ، شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے، شاہ عبداللہ اکنامک سٹی اور مدینہ منورہ سے گزرے گی۔ ادھر سعودی عرب کے جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رمی الرحمی نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ تکنیکی مشکلات کے باوجود وہ حرمین ریل گاڑی کے غیر معمولی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ ٹرین پہاڑی علاقوں، ریتیلے میدانوں، ساحلی پٹی اور میدانی علاقوں سے گزرے گی۔ حجاج و معتمرین کے لیے ایک گراں بہا تحفہ ہے جو انہیں اندرون ملک کم سے کم وقت میں ایک سے دوسرے مقام تک پہنچانے میں مدد فراہم کرے گا۔ مجموعی طور پر حرمین ٹرین کے ٹریک کی لمبائی 450 کلومیٹر ہے۔ 2 طرفہ ٹریک پر ایک ہی وقت میں 35 بوگیاں چلائی جائیں گی۔ حرمین ٹرین 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرے گی اور رومیہ اوسطاً 1,60,000 جبکہ سالانہ 6 کروڑ افراد سفر کریں گے۔ اب خبر ایران سے۔ ایران میں حکومت مخالف عرب گروپ احواز نیشنل ریسیڈنٹس نے ہفتے کے روز ایرانی پاسدار انقلاب کے فوجی پریڈ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کی خبر ہے۔ کارروائی میں 29 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی حکام نے احواز میں حملے کے حوالے سے ہفتے کی شام ہالینڈ، ڈنمارک اور برطانیہ کے سفیروں کو طلب کر کے ان کے ملکوں پر ایرانی اپوزیشن کے متعلق جماعتوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے حملے کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہرایا ہے۔ حملے کے ذمہ داران کے حوالے سے ایرانی سرکاری بیانات افراتفری کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسے میں صدر حسن روحانی نے سیکورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ حملہ آوروں کی شناخت کے تعین کے لیے اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال کریں۔
اب خبر فلسطین سے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کا اندیا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اعلانیہ اور خفیہ کسی بھی طرح اسرائیل سے بات چیت پر تیار ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اپنے دورے فرانس کے دوران فرانسیسی صدر امانویل میکرون سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں صدر عباس نے کہا کہ فلسطین کی جانب سے کسی بھی لمحے اسرائیل سے بات چیت سے انکار نہیں کیا گیا۔ مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ہیں۔ صدر عباس نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اعلانیہ اور خفیہ ہر طرح سے مذاکرات پر تیار ہیں، تاہم مذاکرات عالمی برادری کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے وہی اپیل کہ آپ ہمارے دیگر اہم ترین ویڈیو نیوز کو بھی اور ویکلی سیدھی باتوں کو بھی دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ ہم یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما